So in previous class, we have studied about parallel connection, and from that parallel connection, KCL will be implemented, was implemented, as well as current divider rule or current division rule we have studied. Now today, we will discuss the combination of series as well as parallel circuit, and from that we will move to the mesh analysis and nodal analysis procedure. ठीक है, and after that if we will get some time, then we will discuss about conversion of different sources, one sources to another sources conversion procedure, that is voltage source and current source. Okay, so before going to the topic, just a minute. Before going to the topic, today we will discuss about series parallel circuit. Series parallel circuit. So series parallel circuit, as per the name suggests, okay, that is series and parallel both are in the circuit. So the in the circuit diagram will consist of a connection in series as well as parallel connection. Like I am giving you an example. Suppose this is the supply voltage E and have some resistance R1, R2, R3, and there is a current. So this type of circuit, that means the circuit consists of a parallel connection, that is R2 and R3 are in parallel. This is parallel connection. And the R2 and R3 both are in series with R1. ये जो connection है, ये series में है. That is series connection. So now, how we will do the solution? So before going to the solution, that is E को हम V लिख सकते हैं, that is V equal to E, that is external source or voltage source. Now you will see that if we will find out the relation V equal to IR as per Ohm's law, so I have to find out the R, that is R is nothing but the R equivalent. So what will be the R equivalent for this circuit? Anyone? What will be the R equivalent of this circuit? What will be the R equivalent of the circuit? Tell me. What will be the R equivalent of this circuit? There are three resistors, two are in parallel, and two resistors, parallel resistor is connected in series with another resistance, that is R1. Then what will be the R equivalent? Are you getting my question? मैं जो क्वेश्चन किया हूं तुम लोगों, वो क्वेश्चन तुम लोग समझ पा रहे हो मैंने क्या क्वेश्चन किया? Yes, sir. Now how I will get the R equivalent? See, to find out the R equivalent, we have to move step by step. तो देखो यहाँ पे R2 क्या है? सर हाँ बोलो. बोल रहे हैं कि यहाँ पर आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए सर R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे ही होगा ना सर? हाँ, R1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 नहीं होगा, इसका 1/R1 R2 प्लस 1/R3 होगा. बिकॉज देखो मुझे पाथ देखना है, करंट यहां से जा रहा है, ये पाथ डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर यहाँ पे जाके डिवाइड हो रहा है, दैट इज I1 एंड I2. सो ये जो दो रेजिस्टेंस है ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है. सो
the parallel resistance will be like there, that is R equivalent 1. So ये क्या होगा, R equivalent 1 equal to 1/1/R1 plus 1/R2. So R1 R2 R1 plus R2. So ये हो गया R equivalent. Now the circuit will look like this. अब ये सर्किट जो है it will look like this. हाँ बोलो. सर आप R इक्विवेलेंट 1 इक्वल टू सर 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे सर, मतलब इक्विवेलेंट 1 का लेना है ना सर. पैरेलल है 1/R1 प्लस 1/R2, सॉरी 1/R2 प्लस 1/R3. सॉरी यहाँ पे नोटेशन चेंज होगा, 1/R2 R3 होगा. वही बोल रहे सर. ठीक है, सो नोटेशन चेंज होगा. तो नाउ इट विल लुक लाइक दिस. So now the circuit will look like this, that is R1 and R equivalent 1. So now देखो करंट का पाथ, देखो यहाँ से करंट होते हुए ये पाथ क्रॉस करते हुए ये पाथ में जा रहा है, करंट डिवीजन नहीं हो रहा है. सो आई कैन से दिस टू रेजिस्टेंस विल बी इन सीरीज. नाउ इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R equivalent 2 और सिंपली R equivalent. R equivalent equal to R1 plus R equivalent 1. So it will be R1 plus R2 R3 R2 plus R3. तो ये हो गया R equivalent. So now the circuit will look like this. ये सर्किट अब ऐसे दिखेगा. That is R equivalent E or V, whatever you can, and this is I. So now as per Ohm's law, the equation of E will be IR, I into R equivalent. So I into R1 plus R2 R3 R2 plus R3. Okay, so this is the combination when this is the circuit equation when we will see if series and parallel both are connected in a single circuit. First of all, we have to find out the resistance which is connected in series and which is connected in parallel. Then I will find the equivalent resistance, and after finding the equivalent resistance directly you will put Ohm's law. तो इसके लिए मेरा स्टेप क्या होगा, what are the steps? First, analyze the connection of the resistances. Second one, find out total equivalent resistance, that is R equivalent. Now apply Ohm's law. Okay, now if I will say, मैं तुम लोगों को सर्किट देता हूं, उसका रिजल्टेंट निकालो. That is, suppose 20 volt supply is there, एक रेजिस्टेंस है 2 ओम, सिक्स ओम. ठीक है, नाउ फाइंड I in the given circuit. So find out the value of the I. What will be the value of the I? Quick find out.
क्विक फाइंड आउट करो। क्विक फाइंड आउट। सर 4 एम्पियर होगा सर। इक्वल टू 4 एम्पियर। गुड, 4 एम्पियर। So see, first two I have to find out first R equivalent. So R equivalent find out कर लेंगे, मुझे क्या करना पड़ेगा? I have to analyze the connection of the resistances. That is, these two sixes are connected in parallel. So since they have the same value, so यहाँ पे क्या होगा? 6 by number of resistance 2, और ये जो equivalent resistance है 6 by 2, ये सीरीज में कनेक्टेड है 2 के साथ. So 2 plus, so 2 plus 3 ohm, that is 5 ohm, and V equal to I R equivalent. So यहाँ पे I into R equivalent का वैल्यू है 5 ओम एंड V का वैल्यू है 20 वोल्ट. So I equal to 20 by 5, that is 4 ampere. So that is the answer. Very good. So now this way we can analyze the circuit which has both the connection, that is resistances in parallel as well as resistances in series. Okay. Now what happened if an open circuit will be connected, if the circuit will be open in a connection? So that is the part, that is open circuit in a series parallel circuit. What will happen? We will see. बिकॉज कल ही मैंने ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का ये कॉन्सेप्ट दिया था. सपोज सेम वैल्यू मैंने सेम ले लिया हूं, यहां पे सेम वैल्यू 6 ओम, 6 ओम, दैट इज 2 ओम एंड दैट इज 20 वोल्ट. तो ये सेम सर्किट है. ठीक है, सेम सर्किट है. Same circuit. Now what happened if if the circuit will be open in any portion of the circuit? ठीक है, suppose let it be in first case, case 1. सपोज यहां पे मैंने सर्किट को ओपन कर दिया. ठीक है, यहां पे मैंने सर्किट को ओपन कर दिया. दैट मीन्स वी हैव टू डिस्कनेक्ट द सर्किट इन दैट पोर्शन. तो सर पैरेलल कनेक्शन में तो सर उसमें तब इलेक्ट्रिक करंट नहीं आएगा सर तब. पैरेलल में करंट नहीं आएगा एंड योर एंटायर करंट विल बी डिस्कनेक्टेड हो जाएगा सर. एंटायर करंट विल बी 0 एम्पियर. हाउ? बिकॉज जब तक मेरा सर्किट कंप्लीट नहीं होता, देखो ये ओपन है, ठीक है, यहाँ पे कोई कनेक्शन है नहीं, तो ये करंट जो आएगा यहाँ जाते जाते यहाँ तक आते यहाँ पे रुक जाएगा, मेरा सर्किट कंप्लीट नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो सर्किट कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो आई विल नॉट द वैल्यू ऑफ करंट, any value of the current, so it will give me 0 value of the current everywhere in the circuit. ठीक है, सो अगर ये सर्किट, हाँ बोलो सर. बट वहां पर जो रेजिस्टेंस है 2 ओम है, तो वहां पर तो कुछ तो सर करंट जाएगा ना सर. यहाँ पे करंट जाएगा, लेकिन मुझे इस पोर्शन पे तो नहीं मिल रहा है करंट. मुझे कब मिलेगा? हाँ, बट उतना तक तो जाएगा ना. यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, लेकिन मेरा सर्किट जो कंप्लीट होगा, ठीक है, मेरा जब सर्किट कंप्लीट है, ओपन है, जैसे तुम अभी एक स्विच बोर्ड को देख लो, ठीक है, अभी तुम्हारा स्विच ऑफ है, मतलब स्विच में कोई कनेक्शन है नहीं, यहाँ पे ये स्विच है, ठीक है, यहाँ पे कोई कनेक्शन है नहीं, तो दोनों का कनेक्शन कुछ मतलब कंप्लीट नहीं हो रहा है. तो यहाँ अभी तुम अगर टेस्टर दोगे, टेस्टर लगा के या मल्टीमीटर लगा के तुम अगर करंट को मेजर करोगे बाय कीपिंग योर स्विच ऑफ, you will get 0 ampere current, because
मेरा सर्किट करंट कहां से मेजर कर रहा हूं? जब तक मेरा सर्किट कंप्लीट नहीं होता, दैट इज ये क्लोज हो गया, अब ये क्लोज होके मेरा सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है और ये मेरा सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, तभी हम किसी भी पोर्शन में मैं करंट का वैल्यू ले सकता हूँ। ठीक है, अदरवाइज इट विल से एज डमी नोड, दैट मीन्स वहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब देखो, कोई भी रोड अगर कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, वो रोड का आगे जाके कनेक्शन नहीं है, तो उस रोड में तुम गाड़ी चलाओगे या गाड़ी का कोई वैल्यू मिलेगा? नो सर। सेम थिंग, करंट क्या करता है, एक पर्टिकुलर पाथ में फ्लो करता है। ये पाथ कंप्लीट नहीं है क्योंकि इधर नेगेटिव जो टर्मिनल है वो इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल भी इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, आपस में डिसकंटिन्यू हो गया। तो अगर डिसकंटिन्यू हो गया तो करंट का फ्लो यहाँ पे जाके रुक जाएगा। तो यहाँ पे जाके करंट रुक गया, मतलब करंट लॉस हो रहा है, मेरा कोई भी करंट का वैल्यू यहाँ पे अभी नहीं है, जीरो हो गया। दैट्स व्हाई मैंने कहा था ओपन सर्किट में करंट का फ्लो कोई वैल्यू नहीं देगा। याद है मैंने एक मैट्रिक्स दिखाया था कल, जब करंट ओपन सर्किट में कोई वैल्यू नहीं दिखाता है। ये सुन नो, कल एक मैट्रिक्स दिखाया था लाइक दिस, ये वाला मैट्रिक्स। यस सर, हाँ। ठीक है, तो करंट ओपन सर्किट में कोई वैल्यू नहीं देगा। तो अगर सर्किट मेरा 20 से डिसकंटिन्यू है तो ओवरऑल किसी भी पोर्शन में, सर्किट का किसी भी पोर्शन में मेरा करंट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। और दैट मींस ये नोड का होना ना होना सेम है। अगर देखो एक रोड जा रहा है, ठीक है, बीच से वो रोड कटा हुआ है, ठीक है, वहां पे कोई कनेक्शन नहीं है, तो वो रोड का होना ना होना सेम बात है। तो सिमिलरली करंट के लिए भी ऐसा ही है, करंट अगर किसी भी पाथ में कंप्लीट नहीं करता है अपना अपना जर्नी को, तो वो उस पाथ का होना ना होना सेम थिंग है। नाउ ये हो गया, सर्किट के बीचों बीच कनेक्शन ओपन है। नाउ मैं अब करूंगा पैरेलली, जो रेजिस्टेंस है इसके बीच में मैं ओपन करूंगा, केस टू। तो केस टू में होगा, केस टू ले रहा हूं, सपोज यहाँ पे एक है और इस पोर्शन में मैं ओपन कर दे रहा हूं। ठीक है, इस पोर्शन में और इस पोर्शन में दोनों एक ही कंसीडर करेंगे, एक ही एग्जांपल देकर दोनों को कंसीडर करेंगे। सो नाउ आई 24, नाउ करंट विल फ्लो। देखो करंट यहां से फ्लो होते होते इधर आ रहा है, इधर आके इधर जा रहा है, इधर दो हिस्सों में बट रहा है, I1 एंड I2। बट I2 देखो, I2 कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे रोड कटा हुआ है, ठीक है, ये कनेक्शन पाथ डिस्कनेक्टेड है। तो I2 क्या करेगा, इस पाथ से जाएगा ही नहीं, तो आई जितना भी करंट है जो वो इस पाथ को कवर करेगा, ये पाथ को कंटिन्यू करेगा। सो पाथ विल बिकम लाइक दिस, सॉरी, पाथ विल बिकम लाइक दिस। ठीक है, ये पाथ वो कंटिन्यू करेगा ही नहीं, ठीक है, ये पाथ को लेगा ही नहीं। तो जितना भी आई करंट है, दैट इज 2 ओहम 6 ओहम, ये करंट इस पाथ के थ्रू इधर आके सर्किट को कंप्लीट करेगा। ठीक है, सो नाउ अगर ये सर पाथ, इसमें तो हाँ, हाँ बोलो। सर केस टू में तो आई का वैल्यू सर मिल जाएगा तब तो। हाँ सेम रहेगा, केस टू में आई का वैल्यू सेम रहेगा क्योंकि ये पाथ क्रॉस है, यहाँ पे कंटिन्यू नहीं छोड़ रहा है, तो यहाँ पे आई जाएगा ही नहीं। तो अगर आई इस पाथ से होते हुए ये पाथ को पकड़ के इस पाथ में चला गया, तो दिस पाथ, दिस पोर्ट और दिस पोर्शन इज नोन एज डमी, डमी। और सर तब तो ये सीरीज कनेक्शन में ही तो हो जाएगा सर। गुड, तब ये क्या होगा, देखो करंट जैसे ही डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, एक ही करंट, सेम करंट थ्रू आउट द पाथ है, तब ये कनेक्शन मैकेनिज्म चेंज होएगा, हो जाएगा। तब ये 2 ओहम और 6 ओहम विल बी इन सीरीज, तो आर इक्विवेलेंट विल बिकम 2 + 6, एट दैट ओम। इज 8 ओहम, एंड योर करंट इज 20/8, सॉरी 25।
2.5, ठीक है। सो 2.5 एम्पियर, तो ये करंट का वैल्यू 2.5 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। सो सेम थिंग, अगर वही केस होगा, अगर ये इस पोर्शन में मेरा ओपन रहा तो सिर्फ करंट इस पाथ में जाएगा, तो ऑब्वियसली वी विल गेट अगेन 2.5 एम्पियर, बट द पाथ विल बी चेंज। तो अगर कोई पाथ में मेरा ओपन सर्किट होता है तो करंट क्या करेगा, करंट नेक्स्ट कंप्लीट पाथ को ढूंढेगा। यहाँ पे देखो पहला केस में क्या हो रहा था, करंट यहाँ से पास होके इधर जा रहा था, देख रहा था कि यहीं पे कनेक्शन कटा हुआ है, दूसरा कोई इधर पाथ है नहीं, तो दूसरा कोई पाथ है नहीं, तो करंट यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, तो वी विल गेट 0 एम्पियर। केस 2 में देखो करंट इधर आ रहा है, इधर दो हिस्सों में बट रहा है, सिंस पैरेलल कनेक्शन है, तो दो हिस्सों में बट के देख रहा है ये पाथ कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, ओपन है, तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा नहीं, जो करंट क्या करेगा, अपने आप को इस पाथ से मूव कराएगा। तो अगर मेरा टोटल करंट इस पाथ में कंटिन्यू हो रहा है, सो दैट मींस करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है। अगर करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है, तो आई विल से द टू रेजिस्टेंस विल बी इन सीरीज, दैट इज 2 ओम एंड 6 ओम। समझ में आया? ओपन सर्किट अगर किसी सर्किट में आता है, यस सर, आगे समझ। ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज सोर्स कन्वर्शन। नाउ सोर्स को कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने वोल्टेज सोर्स को डिफाइन किया हूं, कभी कभी मैं करंट को डिफाइन कर रहा हूं कि करंट कितना आ रहा है तो वोल्टेज निकालो। नाउ ये क्वेश्चन डिपेंड करता है मेरा सोर्स क्या है। अगर यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दे दिया गया है तो ऑब्वियसली आई हैव टू टेक द करंट फ्रॉम दैट गिवन वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अगर मेरा करंट सोर्स दे दिया गया तो डायरेक्टली आई कैन फाइंड आउट द करंट फ्रॉम द करंट सोर्स। तो उससे पहले मुझे जानना पड़ेगा सोर्स क्या होता है, सोर्स। सो कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन कि सोर्स क्या होता है? कोई भी आइडिया है सोर्स क्या होता है इस चीज के ऊपर? सोर्स क्या होता है? सर, जिसमें से करंट फ्लो करता है वही तो सोर्स हो गया सर। गुड, दैट मीन्स हम यहाँ वायर, पे करंट वायर जैसे इंडिपेंडेंट है, शून्य। लेकिन जब मैं डेफिनेशन दूंगा तो मैं कभी भी तुम्हारा पर्टिकुलर पैरामीटर को असाइन नहीं करूंगा, ठीक है। मैं कहूंगा सोर्स इज द एक्टिव नेटवर्क एलिमेंट एसेंशियल फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सर्किट। अगर इलेक्ट्रिसिटी में बोलूंगा तो वहां पे वोल्टेज भी आएगा, करंट भी आएगा। तो व्हेनेवर वी विल डिफाइन द सोर्स, वी विल से दैट सोर्स is the is a is an active network element essential for flow of electricity in a particular सर्किट, ठीक है। तो ये एक्टिव क्यों है? क्योंकि ये खुद से नेटवर्क में तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में सक्षम है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सोर्स। नाउ सोर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, ठीक है। फर्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ सोर्स। फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स। सो इंडिपेंडेंट सोर्स किसको कहते हैं? जो डायरेक्टली तुम्हें सोर्स सप्लाई करता है, किसी और पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लाइक मैं अगर बोलूंगा कि तुम्हारा जो पावर प्लांट है, ठीक है, वो तुमको 220 सप्लाई कर रहा है, तो वो 220 के बदले 440 भी सप्लाई कर सकता है इंडस्ट्रियल बेसिस में। वही पावर प्लांट 220 भी सप्लाई कर रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंस है, ये इंडिविजुअल सोर्स है। दैट इज तुम अगर एक रिमोट में, ठीक है, बैटरी लगाओगे तो दैट बैटरी विल बी इंडिपेंडेंट सोर्स। क्या तुम 9 वोल्ट का बैटरी भी लगा सकते हो, 5 वोल्ट का बैटरी भी लगा सकते हो, रिमोट काम करेगा, 9 वोल्ट का लाइफ स्पैन कम होगा, 5 वोल्ट का लाइफ स्पैन ज्यादा होगा। एंड अकॉर्डिंग टू योर सर्किट यू कैन प्रोवाइड द इंडिपेंडेंट सोर्स, के किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा।
वहीं पे डिपेंडेंट सोर्स, दूसरा सोर्स क्या होता है, डिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स। ये डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, ये एक होता है इंडिपेंडेंट सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तुम अगर घर का पावर कनेक्शन देखोगे, घर में जो पावर सप्लाई है, पावर सिस्टम है, वो घर का जो सर्किट है, ये डिपेंडेंट सोर्स है। किसके ऊपर डिपेंडेंट सोर्स है, तुम्हारा सप्लाई वोल्टेज के ऊपर डिपेंडेंट सोर्स है। अगर तुम्हारा पावर प्लांट या ट्रांसफार्मर से किसी दिन लो वोल्टेज या वेरी लो अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है, सप्लाई प्रोवाइड हो रहा है, तो तुम देखोगे घर में भी लो वोल्टेज बरकरार रहेगा। ठीक है, अगर हाई वोल्टेज अचानक से आ गया तो घर में भी जितना भी पावर सर्किट है उसमें हाई वोल्टेज फ्लो करेगा। सो दैट इज डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट सोर्सेस। कि तुम्हारा ट्रांसफार्मर से तुम्हारा कनेक्शन आता है मीटर बॉक्स में, अगर ट्रांसफार्मर में डिसकंटिन्यू रहा सप्लाई, तो ऑब्वियसली यू विल फेस द डिसकंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई इन योर होम नेटवर्क। ठीक है, और वायरिंग ऑफ द हाउसेस। सो ये हो गया डिपेंडेंट सोर्स, दैट इज ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तुम्हारा जो मोबाइल का चार्जर है, मोबाइल का चार्जर इज अ सोर्स फॉर मोबाइल चार्जिंग। ठीक है, वो चार्जर जो है वो मोबाइल के लिए सोर्स काम करता है, लेकिन वो चार्जर भी डिपेंडेंट करता है, जब तक तुम स्विच ऑन नहीं करोगे वो चार्जर खुद से सोर्स सप्लाई जनरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, तुम रिमोट, हाँ बोलो। सर जैसे इंडिपेंडेंट सोर्स सर, तब हम ट्रांसफार्मर को भी बोल सकते हैं सर। ट्रांसफार्मर, बैटरीज, ये सब इंडिपेंडेंट सोर्स है, क्योंकि बैटरी तुम जब काम कराओगे बैटरी का, ठीक है, बैटरी में अगर तुम रिमोट में बैटरी लगाओगे तो बैटरी खुद से सप्लाई देगा, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। ये नहीं कि तुम्हारा टीवी जब तक चल रहा है वो बैटरी काम कर रहा है, टीवी जब नहीं चलेगा वो बैटरी काम नहीं करेगा, नहीं, बैटरी हर वक्त काम करता है। ठीक है, अब तुम यूज करोगे तब तुम्हारा बैटरी डिस्चार्ज होगा। ठीक है, बट वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तुम्हारा टेलीविजन, टेलीविजन में जो पावर सप्लाई आता है वो टेलीविजन डिपेंडेंट है, कि तुम्हारा अगर मेन स्विच ऑफ कर दोगे घर का तो टेलीविजन नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो डिपेंडेंट है। समझ में आया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है। यस सर। बट सर जैसे कि मतलब डिपेंडेंट सोर्स, जैसे कि घर का जो करंट आ रहा है सर, तो 220 वोल्ट ही आ रहा है, तो हाँ, वो डिपेंडेंट हो गए। हाँ वो और डिपेंडेंट अगर है। मतलब ज्यादा हो जाएगा तो वो अगर ज्यादा डिपेंड कर अगर रहा है वोल्टेज तुम्हारे आ गया तो सप्लाई भी के तो। ऊपर, तुम्हारे सप्लाई के ऊपर, क्योंकि तुम डोमेस्टिक सप्लाई में हो। ठीक है, अगर अचानक से वोल्टेज ज्यादा आ गया, 250 या 320 वोल्ट आ गया, तो तुम्हारा घर में मेन जो है, मेन जो है, जो जहाँ पे मेन स्विच जो है घर का, वहां पे तुम्हारा मैक्सिमम जो सप्लाई आएगा वही वो प्रोवाइड करेगा घर के सर्किट में। ठीक है। यस सर। So now this dependent and independent source will provide you either voltage or current, and according to the parameters or according to the requirement, your sources also can be classified, that is parameters। ये parameters, पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करके, और ये सोर्स टाइप के ऊपर डिपेंड करके। ठीक है, पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करके तुम्हारा सोर्सेस, टू टाइप का सोर्सेस होता है, दैट इज वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। करंट सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स वो होता है जो तुम्हें वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, और करंट सोर्स वो होता है जो तुम्हें करंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये याद रखना, वोल्टेज सोर्स विल प्रोवाइड यू द वोल्टेज। यहाँ पे जितना भी मैंने सर्किट बनाया है, दैट इज, यहाँ पे देखो 20 वोल्ट बैटरी दिया हुआ है, 20 वोल्ट बैटरी दिया है, यहाँ पे ई वोल्ट बैटरी दिया हुआ है, यहाँ पे ई वोल्ट बैटरी दिया गया है। ठीक है, ई वोल्ट बैटरी दिया है, दे विल प्रोवाइड यू द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, सो दे विल known as voltage source, and voltage source are of two types depending on the types of the sources, that is dependent voltage source and independent voltage source। that is dependent, पहले लिखते हैं independent, independent voltage source and dependent voltage source। so current भी similar,
like voltage source, that is independent current source and dependent voltage, ठीक है, सॉरी, current source, current source. So these are the mainly 4 types of sources you will find. तो ultimately types of sources अगर हमसे पूछेगा types of sources, तो I will say there are 4 types of sources. First one is independent voltage source, dependent voltage source, independent current source, and dependent current source. These are the 4 types of sources. ठीक है. Now depending upon their representation or depending upon their type, they will represent it. So अगर मेरा independent voltage source रहा, ठीक है, so independent voltage source रहा, they will be class symbolized by this, that is plus minus, किसी के ऊपर dependent नहीं है. Independent current source रहा, so they will defined as the symbol like this. That is गोल के अंदर अगर प्लस माइनस या एरो सिंबल है तो वो इंडिपेंडेंट है. नाउ डिपेंडेंट है तो इसको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए. इंडिपेंडेंट सोर्स से तो ये इट विल बी गिवन बाय दिस, सो प्लस एंड माइनस. एंड डिपेंडेंट करंट सोर्स, इसको भी थोड़ा अलग करना पड़ेगा एंड एरो. सो दिस इज द सिंबल. और इसको तुम इस ब्लॉक के अंदर भी लिख सकते हो, नो मैटर, प्लस माइनस. ठीक है. तो अगर यहां पे मेरा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द इंडिपेंडेंट वन. ओके, ये इंडिपेंडेंट वन के साथ कनेक्टेड होगा. और डिपेंडेंट करंट सोर्स ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स. सो ये अगर मेरा कहीं पे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स रहा तो तुम श्योर शॉट रखो कि इसके बाएं साइड मतलब जो सप्लाई है वहां पे आइदर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स दिया हुआ है. और अगर डिपेंडेंट करंट सोर्स रहा उसके भी लेफ्ट हैंड साइड में either they are connected with independent voltage source or independent current source. So this is the types of source, that is independent voltage source, independent current source, and dependent voltage source, dependent current source. So now we will not waste too much time. हाँ बोलो सर. बोल रहे हैं कि डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट करंट सोर्स सर, मतलब इंडिपेंडेंट सर करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स दोनों से सर ये रहेगा, किसी भी एक के साथ कनेक्टेड रहेगा क्योंकि इंडिपेंडेंट जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है डिपेंडेंट. ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है. करंट सोर्स सिंपली करंट सोर्स के साथ ही कनेक्टेड रहे, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स के साथ. वो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के साथ भी कनेक्टेड रह सकता है क्योंकि वोल्टेज से मुझे करंट का वैल्यू निकल सकता है मेरा. यस और नो? यस सर. तो दैट्स व्हाई ये मैंडेटरी नहीं है. सो वी आर नॉट वेस्टिंग टू मच टाइम अबाउट. हाँ बोलो सर. तुम तो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स तो सर करंट सोर्स सिर्फ इंडिपेंडेंट करंट सोर्स पर भी सर डिपेंडेंट हो सकता है सर. दोनों में से किसी एक के साथ कनेक्ट रह सकता है बट उसको एक तो दोनों अल्टरनेटिव होगा. हाँ, एक चीज ध्यान रखना, वो एक इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ कनेक्ट होना चाहिए. ठीक है. तो हम लोग जितना भी यहाँ पे सर्किट देखेंगे वो देखेंगे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स के ऊपर डिपेंड करके, क्योंकि मुझे एक पावर सप्लाई देना है और पावर सप्लाई जो है कभी भी डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स से नहीं आ सकता. डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स से क्या आ सकता है, कंट्रोल कर सकता है वो कि मेरा 240 सप्लाई आ रहा है, तुम्हारा घर में एमसीबी है, तो अचानक से अगर ज्यादा वोल्टेज आ गया थ्रू ट्रांसफॉर्मर तो वो क्या करेगा, एमसीबी को डाउन कर देगा. तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ये कर सकता है. ठीक है, इसका वोल्टेज का वैल्यू को बढ़ा नहीं सकता या घटा नहीं सकता है खुद से. ठीक है, ये कंट्रोल कर सकता है ऑफ ऑन होके.
ठीक है, अगर तुम्हारा सप्लाई में सपोज तुम्हारा घर में देखोगे 5 एम्पियर का स्विच है और 15 एम्पियर का स्विच है, ठीक है, तो 15 एम्पियर स्विच विल प्रोवाइड यू 50 एम्पियर मैक्सिमम करंट। सो अगर वहां पे तुम चार्जर पुट करोगे तो चार्जर वो 15 एम्पियर का करंट को 5 एम्पियर में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। जो कन्वर्ट करता है तुम्हारा चार्जर का पावर करता है, ये तो वो बढ़ाता है या घटाता नहीं, वो कंट्रोल कर सकता है। लाइक अगर मेरा ज्यादा वोल्टेज आ गया या ज्यादा करंट सप्लाई आ गया मेरा हाउस होल्ड में, तो हम वहां पे एमसीबी देते हैं। तो एमसीबी क्या करता है, ऑन ऑफ कर देता है। ठीक है, कि ज्यादा वोल्टेज आ जाता है या ज्यादा करंट सप्लाई आता है तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, डैमेज हो सकता है, तो उसको ऑफ ऑन करता है। तो वी विल नॉट वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, we will consider on the independent voltage source and independent current source. And in your basic electrical course curriculum, whatever circuit it is given, all are connected to the independent voltage source. और इसको तुम इस हिसाब से भी दे सकते हो वोल्टेज सोर्स को, और सिंपली इस हिसाब से भी दे सकते हो, बट ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स विल नॉट यूज, नॉट इन यूज, नॉट इन यूज। ठीक है, अभी हम बेसिक इलेक्ट्रिकल में जितना भी सर्किट पढ़ेंगे दैट इज ऑल आर डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। नाउ सपोज मेरा पावर सप्लाई आ रहा है वोल्टेज सोर्स से, सो नाउ मैं उसको कन्वर्ट करूंगा करंट सोर्स में। सो और करंट सोर्स आ रहा है तो मैं उसको कन्वर्ट करूंगा वोल्टेज सोर्स में। तो इस प्रोसीड्यूर को कहते हैं सोर्स कन्वर्शन, सोर्स कन्वर्शन, conversion, that is first is voltage source, that is all are independent, huh? Voltage source to current source conversion, conversion, and second one is current source to voltage source conversion, conversion। ठीक है, क्योंकि मुझे मिलता है वोल्टेज से मेरा करंट मिल सकता है, करंट से मेरा वोल्टेज मिल सकता है, तो आई कैन कन्वर्ट द गिवन वोल्टेज इन इज कॉरेस्पॉन्डिंग करंट as well as I can convert the current in its corresponding voltage if the resistance will be constant or if the resistance will be given, yes or no? यस सर। ठीक है, क्योंकि मुझे ओम्स लॉ से पता है, फ्रॉम ओम्स लॉ मुझे पता है V इक्वल टू आई आर। सो V को I में कन्वर्ट कर सकते हैं और I इक्वल टू V बाई आर, सो I को V में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट वन थिंग इज रेजिस्टेंस शुड बी गिवन और नोन। ठीक है, ये मेरा कंडीशन है। तो सोर्स कन्वर्शन के लिए, ठीक है, मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू फॉलो सम बेसिक रूल्स एंड दिस रूल हैज टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। अगर ये रूल्स फॉलो नहीं होता तो सोर्स कन्वर्शन नहीं होगा। ठीक है, पहला सोर्स कन्वर्शन का मेरा पहला स्टेप है, स्टेप वोल्टेज और करंट कैन बी expressed in terms of current or voltage respectively from Ohm's law। that means अगर वोल्टेज, सॉरी, दैट मीन्स अगर वोल्टेज रहा तो करंट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, करंट रहा तो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं ओहम्स लॉ से। ठीक है, बट वहां पे मेरा एक माइंड में क्या रखना पड़ेगा, बाय कीपिंग आर और रेजिस्टेंस कांस्टेंट।
ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप, इफ नहीं, सेकेंड स्टेप है वोल्टेज सोर्स always connected in series with resistance, whereas current source is always connected in parallel with the resistance। ये कंडीशन मेरा होना चाहिए, तभी हम सोर्स कन्वर्शन कर सकते हैं। मैं आ रहा हूं डिस्कशन पे, ठीक है, पहले मैं कंडीशन लिख दे रहा हूं। सो नाउ थर्ड है कन्वर्शन हाउ विल लुक लाइक। अगर मेरा वोल्टेज सोर्स, सपोज दिस इज द वोल्टेज सोर्स, ये रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल है, सॉरी सीरीज में है, R इक्वल टू V, तो इसका कन्वर्टेड सोर्स होगा, ये I हो जाएगा, एंड इट इज पैरेलल विथ रेजिस्टेंस R। ठीक है। और फोर्थ स्टेप है, अगर मेरा I गिवन है, दैट इज करंट source will be always connected in parallel with the resistance R, so ये इसका corresponding voltage source में convert होगा like this। ये मैंडेटरी फील्ड है। अगर मेरा किसी भी सर्किट में वोल्टेज सीरीज के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, मेन वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो हम वहां पे कन्वर्शन अप्लाई नहीं कर सकते। सिमिलरली मेन करंट सप्लाई जो है वो रेजिस्टेंस के साथ अगर पैरेलल नहीं है, तो उसको हम वोल्टेज कन्वर्ट नहीं कर सकते। लाइक दिस, अगर मैं एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये चार कंडीशन याद रखना। एग्जाम्पल, मैं अगर सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक 20 वोल्ट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ R 20 वोल्ट, तो मैं इसका कॉरेस्पॉन्डिंग करंट सोर्स कन्वर्शन नहीं कर सकता हूं। अगर सिमिलरली मेरा 5 एम्पियर करंट यहाँ पे है और वो रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कन्वर्शन नहीं कर सकता हूँ। वोल्टेज सोर्स कन्वर्शन नहीं कर सकता हूँ। ये चार पॉइंट सर। हाँ बोलो। सर बट ऐसा क्यों, मतलब उसमें पूछ सकते हैं ना सर, आप ऊपर बस जैसे दिखाए हैं 20 वोल्ट है, तो वो तो प्लस माइनस वाला में है। ठीक है, अब मैं रीजन बताता हूँ व्हाई इट इज हैपेंड। ठीक है, पॉइंट अब मैं एक एक पॉइंट करके आता हूँ। देखो, वोल्टेज सोर्स अगर पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, तो देखो यहां से करंट आएगा, एक करंट जनरेट होगा I, ठीक है, यहां I1 जा रहा है और इधर I2 आ रहा है। यस और नो? यस सर। ठीक है, नाउ देखो यहां का वोल्टेज 20 वोल्ट है और इधर का वोल्टेज भी 20 वोल्ट होगा, क्योंकि वोल्टेज आर इक्वल इन पैरेलल कनेक्शन। यस और नो? यस सर, यस सर। हाँ, तो यहां भी 20 वोल्ट होगा। सो देखो यहां का जो I का वैल्यू है, वो उसका जो वैल्यू होगा यहाँ पे भी I2 का सेम वैल्यू होगा, बिकॉज 20 वोल्ट इधर आ रहा है। ड्यू टू रेजिस्टेंस I का वैल्यू थोड़ा फ्लैक्चुएट करेगा, बट ऑलमोस्ट अगर मेरा यहाँ पे टोटल एंटायर रेजिस्टेंस, सपोज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टिव सर्किट है, सपोज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो देखो यहाँ का टोटल रेजिस्टेंस ऑब्वियसली इस रेजिस्टेंस से कम होगा। यस और नो? सॉरी, ज्यादा होगा। यस सर, हाँ ज्यादा होगा। इस पाथ के अंदर जितना भी रेजिस्टिव मटेरियल है इधर ऐड होता हुआ जाएगा। अब तुम एक बात प्रैक्टिकली सोचो, तुम रास्ते में स्कूटी लेके जा रहे हो या बाइक लेके जा रहे हो, तो तुम्हें एक जगह मिल रहा है जहां पे सिर्फ एक या दो
एक मिनट रुको, एक मिनट। ओके सर। तो तुम्हें दो रास्ते तुम्हारे पास है, तो स्कूटी लेकर तुम जा रहे हो, एक में ट्रैफिक बहुत ही कम है, लाइक एक या दो गाड़ी का जैम है, और दूसरा एक रोड है जहां पे नंबर्स ऑफ कार जो है ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ है, तो तुम अपने गाड़ी लेके कौन से रास्ते में जाओगे? सर जिसमें ट्रैफिक कम होगा उसी में सर। बस, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस एक है और यहाँ पे अलग सा रेजिस्टिव मटेरियल लगेगा, कैपेसिटर इंडक्टर जितना भी है लगेगा। तो करंट कहाँ जाएगा? इधर जाने के बदले क्या करेगा, इधर से सब करंट फ्लो हो जाएगा। तो इस पोर्शन में तुम्हारा कोई सप्लाई जाएगा ही नहीं। तो दैट्स व्हाई इन दिस केस वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर दिस। ठीक है, क्योंकि मेरा मेन सर्किट किधर है, मेन सर्किट में लोड लगेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लोड लगेगा, तो यहाँ पे अगर करंट पहुंच ही नहीं पाया तो लोड से मेरा सप्लाई जाएगा नहीं, करंट पहुंच ही नहीं पाएगा तो मेरा करंट का जो पाथ है सिंपली इसी एरिया में घूमता रहेगा। ठीक है, तो मेरा जो सर्किट यस बनाने सर। का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट फ्रूटफुल नहीं होगा। सो वी विल अवॉइड दिस, अगर वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस पैरेलल है। सिमिलरली मेरा करंट का देख लो, करंट के साथ यहाँ पे रेजिस्टेंस सीरीज में है। ठीक है, तो करंट के साथ अगर रेजिस्टेंस सीरीज में है तो देखो, यहाँ V का कोई जगह ही नहीं है, V निकाल पाओगे? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। सर देखो, बट आर का वैल्यू नहीं होगा सर इसमें। R का वैल्यू है, लेकिन अगर यहाँ से मेरा सपोज दूसरा सर्किट कनेक्टेड है, ठीक है, दूसरा सर्किट यस सर। कनेक्टेड है, दूसरा सर्किट कनेक्टेड है, तो यहाँ पे मेरा V का वैल्यू मिलना मुश्किल है, क्योंकि V के लिए मुझे क्या चाहिए, ये पाथ को, रेजिस्टेंस को खोलना होगा, या मुझे यहाँ पे कहीं पे ओपन करना पड़ेगा। तो अगर कहीं पे भी ओपन करेंगे V का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, तो मुझे इस पाथ में वोल्टेज मिलेगा नहीं, इस पाथ का वोल्टेज मुझे मिलेगा नहीं अगर ओपन नहीं करेंगे। लेकिन अगर ओपन कर दिए तो मुझे करंट जीरो हो जाएगा, सप्लाई बंद हो जाएगा। वही अगर हम कनेक्शन को मॉडिफाई कर देते हैं, ये कनेक्शन वाइज में मॉडिफाई कर देता हूं, पहला जो कनेक्शन है वहां पे 20 वोल्ट लगाता हूं, सीरीज में देता हूं आर वी। तो देखो, यहां से जो करंट जनरेट होगा, ठीक है, करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेन सर्किट में मेरा करंट पहुंचने के लिए मेरा करंट का अमाउंट जो है, आई विल गेट द अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम द इक्वेशन V इक्वल टू आई आर। यस और नो? यस सर। क्योंकि रास्ता एक ही है, रास्ता चेंज करने का कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, तो सीरीज में कनेक्ट हो गया तो मेरा आई निकल गया। सेकेंड, इसी सर्किट को अगर मैं इस हिसाब से कर दूं आर, और यहां से मैं दूसरे सर्किट को ज्वाइन करूं, तो देखो आर ये है, आई ये है, तो इस आई और आर से मुझे वोल्टेज का वैल्यू मिलेगा, तो वोल्टेज यहां पे रहेगा। इस दो पोर्ट है, दो पोर्ट है, दैट इज वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। ठीक है, तो इस दो पोर्ट में मुझे पोटेंशियल वोल्टेज मिल जाएगा, क्योंकि सर्किट यहां से कनेक्ट हो रहा है, पाथ एक नहीं है, वोल्टेज के लिए दो पोलैरिटी चाहिए। यहाँ पे देखो एक ही पोलैरिटी मिल रहा है, अब पॉजिटिव पोलैरिटी मिल रहा है, नेगेटिव पोलैरिटी में कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट ही नहीं होगा। बट इन दिस केस देखो, यहां से यहाँ पे तुम्हारा दो पोर्ट कनेक्टेड है, तो जो V का वैल्यू मिलेगा, दैट V विल लाई इन बिटवीन दिस टू पोर्ट, सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। तो आप समझ में आया क्यों वोल्टेज के साथ रेजिस्टेंस सीरीज होता है, करंट के साथ रेजिस्टेंस पैरेलल होता है? यस सर। Okay. Now I have to implement in the practical example. Like suppose example 2, मेरा ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, अभी वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस 20 वोल्ट, 2 ओम, 2 ओम,
2 ओम 2 ओम। ठीक है, नाउ कन्वर्ट और रिप्रेजेंट the entire circuit in current source representation with a parallel resistance connected with the current source। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपली मैं जब अभी तक जो करते आया हूं वही करूंगा, दैट इज आर इक्विवेलेंट निकालूंगा। आर इक्विवेलेंट निकाल के मैं क्या करूंगा? मैं निकालूंगा आई कितना फ्लो होता है, और आई अगर मेरा टोटल सर्किट में मेरे पता चल गया कि कितना अमाउंट ऑफ आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आई विल गेट द वैल्यू ऑफ द एंटायर सर्किट। ठीक है, सो नाउ कैलकुलेट व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस। सर ओनली करंट निकालना है सर? हाँ, टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है निकालो पहले। यस सर। सर 5 ओम। दैट इज 5। नहीं नहीं वो सर मतलब सर इक्विवेलेंट से रेजिस्टेंस 5 ओम निकलेगा सर। हाँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5। हाँ सर, और आई इक्वल टू आई इक्वल टू कितना आएगा? सर 4 एम्पियर। 20/5, that is 4 ampere। Good। So 2 into 2 parallel, so 2/2 that is 1, and 2 plus 2 plus 1 that is 5 ohm resistance equivalent, and current is 20 V by R that is 4 ohm। so मेरा यहाँ पे क्या होगा, जनरेट क्या होगा? यहाँ पे मेरा जनरेट होगा आई, तो वोल्टेज सोर्स ये है, इसको हम करंट सोर्स में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज 4 एम्पियर। ठीक है, नाउ वोल्टेज सोर्स के साथ पहला कौन सा रेजिस्टेंस है जो पैरेलली कनेक्ट सीरीज में कनेक्टेड है? देखो कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है? पहला रेजिस्टेंस सर 2 ओम और 2 सर 2 है ना सर, वही हाँ, सब दोनों से है। 2 ओम, और यहाँ पे भी 2 ओम सीरीज में कनेक्टेड है, तो करंट सेम करंट फ्लो करेगा, सो दिस 2 ओम विल बी इन सीरीज। ठीक है, तो हम ये वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस हिसाब से, दैट इज प्लस माइनस 4 ओम, और उसके बाद जो है ये तुम्हारा दूसरा सर्किट के साथ कनेक्टेड हो रहा है। ठीक है, यहां तक वोल्टेज के साथ नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस सीरीज में है उसको हम पकड़ेंगे, तो वही रेजिस्टेंस मेरा आई के साथ क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, दैट इज 4 ओम। एंड नाउ द रेस्ट ऑफ द सर्किट विल लुक लाइक दिस। सर पैरेलल वाला सर्किट उसमें सर कुछ चेंजेस नहीं आएगा सर? नहीं, क्योंकि ये लोड के साथ कनेक्टेड है, वो सर्किट को कंप्लीट करता है। मेरा यहाँ पे इक्वेशन देखो, ये स्टेप देखो, वोल्टेज के साथ जो रेजिस्टेंस सीरीज में है वही रेजिस्टेंस करंट सोर्स के साथ पैरेलल आएगा। ठीक है, यस सर। तो दैट्स व्हाई ओके सर, इंटायर रेजिस्टेंस तुम्हारा नहीं आएगा, सिर्फ जो रेजिस्टेंस वोल्टेज के साथ सीरीज में है वही पैरेलली आएगा। ओके, तो नाउ इसको पहले समझ लो पहले, उसके बाद मैं दूसरा इक्वेशन जाऊंगा।
ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज, देखो अब देखो, मैं देखूंगा कि मेरा कनेक्शन कैसा मैकेनिज्म कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो पैरेलल में है। ठीक है, तो यस ये सर। मेरा पहला ये हो जाएगा, तो एंटायर दिस वन विल बी कन्वर्टेड वन, 4 ओम के साथ 4 ओम। ठीक है, सो नाउ दिस इज हाउ द कन्वर्शन विल टेकन प्लेस। सो एक्चुअली जो मेरा फॉर्मेशन है, मेरा जो वोल्टेज का फॉर्मेशन है वोल्टेज सोर्स का, दैट इज लुक लाइक दिस, V प्लस माइनस रेजिस्टेंस दैट इज आर एस, ये सोर्स के साथ कनेक्टेड है वी एस, एंड दिस इज आर एल, ये लोड के साथ कनेक्टेड है आर एल, ये लोड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, नाउ मेरा यस जो कन्वर्ट करूंगा, मैं लोड को पोर्शन को कन्वर्ट नहीं करूंगा, दिस पोर्शन को कन्वर्ट करूंगा। सो ये पोर्शन नाउ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग current sources, that is now this is RS and this is IS source, and this will remain constant, that is RL. ठीक है, so that's how we will change the voltage source in its corresponding current source without changing the load resistance. load resistance को मैं convert नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे load resistance मेरा ये portion है। ठीक है, so now यस सर। next move to the next problem कि मेरा करंट सोर्स दिया रहेगा, आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज सोर्स। सपोज करंट सोर्स दिया है दैट इज 2 एम्पियर, 3 ओम, सॉरी 3 ओम, 3 ओम, 3 ohm, 3 ohm. Now convert it into its corresponding voltage source. Voltage source in series with a resistor or resistance. Now find out the answer. What is the equivalent resistance? R equivalent will be R equivalent will be 3/2, that is 1.5 आ जाएगा इसका equivalent resistance, and this 1.5 will be series with this, तो plus 3 ohm, that is 4.5 आ जाएगा इसका equivalent resistance। ठीक है, and this 4.5 is parallel with this 3, so 3 into 4.5 by 3 plus 4.5, so इसका calculation करो, that is तो 7.5 आएगा सर। 7.5, 3.45, एक मिनट देख लेता हूँ, 3 into 4.5 divided by 7.5, that is 1.8, 1.8। ठीक है, ये देखो यहाँ पे देखो दो है सेम वैल्यू, तो R बाई एन, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.5, यहाँ पे रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज में रहेगा, सो 3 प्लस 1.5 हो गया 4.5। नाउ 4.5 इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ 3 क्योंकि करंट यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सो दो हिस्सों में डिवाइड होगा तो मेरा पैरेलल कनेक्शन, सो R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ये दो रेजिस्टेंसेस के लिए है, R1 प्लस R2 दो रेजिस्टेंसेस के लिए है, तो 3 इंटू यहाँ पे 3 है, 3 इंटू 4.5 बाई 3 प्लस 4.5, सो 3 इंटू 4.5 होता है 13.5,
13.5 by 7.5, that will gives you 1.8. So R equivalent equal to 1.8 ohm. So V equal to I into R. So R equivalent. So I का वैल्यू 2 into 1.8. So 3.6 voltage. So now ये लोड है, मैं सिर्फ लूंगा पहला जो रेजिस्टेंस पैरेलल है करंट के साथ, वही रेजिस्टेंस को मैं सोर्स रेजिस्टेंस पकड़ूंगा. So now it will be converted like this. Plus minus upward direction है, plus minus that is 3.6 volt, 3.6 volt सीरीज. ये रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो जाएगा सीरीज में, इसका वैल्यू हो जाएगा 3 ओम. एंड नेक्स्ट इज अगेन 3 ओम. ठीक है, 3 ओम, 3 ओम. सो नाउ इट विल गिव यू दिस. ठीक है, सो ये पोर्शन हो जाएगा. मैं इस पोर्शन को मैं कन्वर्टेड पोर्शन. सर हाँ बोलो. सर पूरे 5 मिनट का ब्रेक चाहिए सर. अच्छा ठीक है, आफ्टर 5 मिनट व्हेनेवर यू विल. सर खाना नहीं खिलाते. अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है. 5 मिनट का ब्रेक. आफ्टर 5 मिनट आई विल रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ. Okay, so example. Actually, I forgot what is the number of last example. That is example 4. Example 5. Example 5. Okay. So now it is given 40 volt supply, 4 ohm, 2 ohm, 12 ohm, 4 ohm, 20 ohm. That is, this is the value. This resistance का value 20 ohm, and these are connected with RL. ठीक है. So now convert it into its corresponding current source. Convert it into its corresponding current source. Okay, and RL is given 4 ohm. ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग को मिलेगा तो क्या करोगे? इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिलेगा तो क्या करोगे? ठीक है, तो देखो, अगर मेरा ये एग्जाम का ट्रिक है. ठीक है, मुझे क्या है, मेरा कन्वर्शन क्या है, कन्वर्शन टेक्निक. सोर्स के पास, ये सपोज ये सोर्स है, सोर्स के साथ जो रेजिस्टेंस नेक्स्ट टू द सोर्स कनेक्टेड रहेगा उसी को हम सोर्स रेजिस्टेंस पकड़ेंगे. ठीक है, सो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, IS फाइंड आउट करना है. VS दिया हुआ है, दैट इज VS इक्वल टू 40 वोल्ट. ठीक है, तो अगर मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो मेरा अगर देखो यहाँ पे मेरा अगर छोटा रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू इजीली विल बी कैलकुलेटेड. अगर मेरा यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में तुमको लग रहा है बहुत टाइम लग रहा है, दैट इज सर्किट यहाँ पे 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस एंड 6 RL को मिला के 6 रेजिस्टेंसेस है, तो इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में मुझे बहुत टाइम लगेगा. यस और नो? यस और नो? ये से टाइम हाँ, ये से टाइम लगेगा. तो इसमें मेरा ट्रिक मुझे काम लगाना है. देखो, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, वोल्टेज के साथ जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को मैं पकड़ूंगा, वो रेजिस्टेंस मेरा सोर्स रेजिस्टेंस के हिसाब में काम करेगा. ठीक है,
तो मैं ये क्या करूंगा, मैं बाकियों को इक्विवेलेंट टू लोड पकड़ लूंगा। ठीक है, अब मेरा जो टोटल करंट है, यहाँ पे जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है, ठीक से सुनो, हाँ, यहाँ पे जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है, ये टोटल करंट मैं अभी तक कैसे निकल रहा था, टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकाल रहा था। मेरे पास टोटल वोल्टेज है, मैं टोटल करंट को, टोटल वोल्टेज को करंट के साथ डिवाइड कर रहा था। मुझे पता चल रहा था सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो होगा, एंड दैट करंट विल बी सप्लाइड फ्रॉम दिस एंड। ये था ना कि मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल वोल्टेज है, नाउ आई कैन फाइंड आउट द टोटल करंट। बट अगर नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस ज्यादा है, सर्किट कॉम्प्लिकेटेड है, तो मुझे क्या निकालना है, इस पोर्ट में कितना करंट जा रहा है, दैट इज द टोटल करंट। यस और नो? एक मिनट रुको, Yes, sir. एक मिनट रुको। एम आई ऑडिबल ना? मैं ऑडिबल हूं ना? मैं ऑडिबल हूं ना? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, सो देखो, यहाँ पे मुझे क्या, पहला केस में क्या है, मेरा टोटल आर इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ, उसके बाद मैं वोल्टेज से डिवाइड दे रहा हूँ, तो मेरा आई इक्विवेलेंट निकलेगा। इट इज द बेसिक वे, ये एक नॉर्मल वे है। अगर तुम एक ये वन के बच्चे को तुम अगर बोलोगे ये 2+3 बोलो, गिनने बोलोगे, तो वो क्या करेगा, हाथ का उंगली गिन के 2+3=5 बताएगा। ठीक है, जो मैं अभी तक कर रहा था। नाउ मेरा अब क्या है, सर्किट बड़ा हो गया है, ठीक है, रेजिस्टेंस, बहुत सारा रेजिस्टेंस लग गया है, तो मैं उतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मुझे निकालना है टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है। मुझे पता है कि आई करंट किसी भी रेजिस्टेंस में फ्लो होने के लिए क्या रिलेशन उसको मैच करना पड़ेगा, वी बाई आर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आई करंट फ्लो कितना हो रहा है, इसके लिए मुझे ये सब रेजिस्टेंस को जरूरत ही नहीं है पकड़ने का। तो मैं देखूंगा मेरा वोल्टेज सप्लाई कितना है और ये रेजिस्टेंस में कितना आई फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये आई ही डिवाइड हो रहा है। ये सब नो, समझ में आया? हेलो, समझ में आया कि मैं अगर कैलकुलेट यस कर रहा हूँ टोटल आई, तो मैं सिर्फ कैलकुलेट करूंगा इस आर के थ्रू कितना आई मेरा सर्किट के इधर फ्लो हो रहा है। इसको कैलकुलेट करने से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो नो नीड टू फाइंड आउट द एंटायर आर इक्विवेलेंट इफ द सर्किट इज वेरी लॉन्ग, मेनी रेजिस्टेंसेस विल बी कनेक्टेड। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई विल डू द स्मार्ट वर्क, कि मैं यहाँ पे आई एस निकालूंगा VS/RS। तो आर एस यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है, 4, सो ये आर एस हो जाएगा, तो V है 40, नेक्स्ट है 4, दैट इज 10 एम्पियर। डायरेक्ट निकल गया, एक लाइन में मेरा सोल्यूशन निकल गया। सो नाउ इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द सर्किट लाइक दिस, कि सिर्फ यहाँ पे जो वोल्टेज था वहां पे मैं करंट निकाल दिया हूँ IS, दैट इज 10 एम्पियर, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंसेस है ये सेम रहेगा, RS का वैल्यू, RS का वैल्यू है 4 एम्पियर, और बाकी जितना भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है एज यूजुअल वो कनेक्ट होता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, दो लाइन में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नाउ जितना भी तुम वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन या करंट ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉब्लम मिलेगा, देखोगे कभी भी एक लाइन पे नहीं पूछता है कि यूजिंग सोर्स कन्वर्शन टेक्निक फाइंड दिस वैल्यू ऑफ IS, कभी नहीं पूछता, ये इनडायरेक्टली पूछता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, यही एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करूंगा। सर्किट सेम है, सर्किट मेरा सेम है, ठीक है, सर्किट मेरा सेम है, सर्किट मेरा सेम है, ठीक है, सेम एग्जांपल को एक्सटेंड कर रहे हैं। सर्किट मेरा सेम है, यहाँ पे मेरा कितना था, 40 वोल्ट था, 40 वोल्ट, ठीक है, बाकी सर्किट सब सेम है। नाउ क्वेश्चन विल आस्क दैट, क्वेश्चन कैसे पूछता है यहाँ पे, बाय यूजिंग सोर्स कन्वर्शन टेक्निक, find the value of find the value of voltage
across RL where RL equal to 4 ohm. Now how you will find out? कैसे करोगे? क्योंकि पहला जो क्वेश्चन है वहीं पे मेरा सोर्स कन्वर्शन करना पड़ेगा, तो पहला पोर्शन आई हैव ऑलरेडी डन दिस पोर्शन. नाउ द एंटायर सर्किट विल लुक लाइक दिस. अभी आफ्टर सोर्स कन्वर्शन अप्लाइंग सोर्स कन्वर्शन क्या आएगा? दैट इज 10 एम्पियर 4 ohm. Now the circuit will look like this. ये RL का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 ohm 2 ohm, ये आ जाएगा 12 ohm, ये आ जाएगा 20 ohm. Now I have to find out the voltage across this. So now how we will find it? Find it. बाय यूजिंग सोर्स कन्वर्शन. हाँ, ये नहीं कि एक ही बार में आर की इक्विवेलेंट निकाल दिए. ठीक है, सोर्स कन्वर्शन निकालना पड़ेगा मुझे. ये एक चीज याद रखना, सोर्स कन्वर्शन निकालना पड़ेगा. और ये क्वेश्चन का मार्क्स मैं बता दे रहा हूँ, ये आएगा तुम लोग का 6 से 6 मार्क्स का करीब करीब आएगा ये सवाल. तो अगर 6 मार्क्स है, ऑब्वियसली छोटा मोटा नहीं होगा, उसको प्रोसेस को खींचना पड़ेगा रबड़ की तरह. तो देखो, स्टेप 1 क्या करना पड़ेगा? स्टेप 1 मैंने सोर्स कन्वर्शन कर दिया. स्टेप 1 मैंने कर दिया. स्टेप 1 ठीक है. स्टेप 2 क्या करना पड़ेगा? ये दो रेजिस्टेंसेस है, ये पैरेलली कनेक्टेड है, तो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस? जल्दी बताओ. 4 और 12 अगर पैरेलल है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 4 और 12. हेलो सर. हाँ बोलो. सर बोल रहे हैं कि नेट खत्म हो गया, से सुनाई नहीं दे रहा है कुछ, अब बार बार लेफ्ट कर जा रहे हैं सर. दोनों का खत्म हो गया है. ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही रखो. ये तुम्हारा होम टास्क है. ठीक है, कल जब मैं क्लास कराऊंगा इसी प्रॉब्लम के साथ शुरू करूंगा. ठीक है. यस सर. ओके.